Hello dear students, welcome to the video today. So children, we will be starting this chapter, The Rise of Nationalism in Europe. Of course, this chapter, one of the most important chapters. Here we will be understanding how nationalism happened in Europe. Children, we are talking about the world history, class 10th. History is mostly of course, world history. We have started it in class 9th. Some of the aspects of world history we will be understanding in class 10th also, and from here further we will be moving uh, towards the chapters, towards the other chapters which are talking about Indian history and the print culture. Now please let us understand that the rise of nationalism in Europe, one of the most important chapters where we are understanding that how nationalism happened in Europe. Children, this chapter starts with this picture. Please go through this picture properly. Board examination, these kind of pictographic questions are asked, that you have to comment on this picture. What is the major mode in this picture? Which is the first flag shown in this picture? Pehla flag kaun sa hai? What is the statue showing there? So you have to talk about this statue. What are the angels talking about? What is the feature that is mentioned here on the top? Does it signify freedom? Does it signify liberty? ये सारी चीज़ें आपको ये questions पूछे जा सकते हैं. So children, you have to go through it properly. एक बारी इसको आपको ध्यान से देखना है. Now children, when we go further, आपको one thing that is more you need to understand is this was prepared by one of the great painters of that time, Frederick Seurat. Frederick Seurat का नाम as a painter is very famous. He painted this picture in 1848. 1848 याद रखिएगा children. General awareness point of view, it's important. Now, जब हम आगे बढ़ते हैं, हमको ये समझ में आ रहा है कि 1848 में Frederick Seurat, why did he make such a painting? It is a series of 4 prints जिसमें कि he is talking about, he is visualizing about the dream of a world जहाँ पे कि it is democratic and social republics. All the countries are democratic and all the countries are social. They are giving us the message that society is in a very harmonious manner as he called upon them. जैसा कि इन्होंने कहा कि democratic and social republic. And the first print, figure 1 जो हम देख रहे हैं, it is showing the people of Europe and America. ये देखिए यहाँ पे ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं, this is not only exclusively Europeans, but here we find the Americans as well. हमको यहाँ पे अमेरिका और यूरोप की एक जॉइंट पिक्चर है where the people are moving towards liberty. फ्रीडम की बात हो रही है. नेशनलिज्म का मतलब, नेशनलिज्म इज सिनोनिम टू फ्रीडम. नेशनलिज्म हो गया, फ्री हो गए, एंड द सिटीजन्स आर मूविंग टूवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. आप लिबर्टी को बहुत ही क्लियरली देख रहे हैं. देन फर्स्ट प्रिंट इज टॉकिंग अबाउट men and women of all ages, then social classes marching in a long train offering the Statue of Liberty. स्टैचू ऑफ लिबर्टी को सब लोग दे आर पेइंग देयर ट्रिब्यूट टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. यहाँ पे वी आर सीइंग दे पास. सी रिकॉल आर्टिस्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कहा था, इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हाट वेयर द कैच लाइन वर्ड्स? द वर्ड्स वेयर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. यहाँ पे हम उसी लिबर्टी की बात कर रहे हैं. My dear students, we are talking about the same liberty here. This liberty, what is it signifying? Here we can see the torch of enlightenment. It is bearing in one hand. एक हाथ में मशाल है जो कि बहुत सारे लोगों के अंदर एक भावना आ रही है फ्रीडम की. And it is talking about the charter of rights of man in the other.
दूसरे में क्या है, दूसरे में मतलब कि चार्टर, हाँ, लोगों के हाथ में देयर इज द चार्टर ऑफ राइट्स। आखिर ये चार्टर ऑफ राइट्स क्या है? व्हाट इज दिस चार्टर ऑफ राइट्स टॉकिंग अबाउट? जस्ट इट इज मेंशन्ड हियर। ऑन वन हैंड हियर वी कैन रिकॉग्नाइज, ठीक है, चार्टर ऑफ राइट्स है, एक हाथ में मशाल है, दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स। स्टूडेंट, दिस इज द चार्टर ऑफ राइट्स। अधिकार, राइट्स समझिए, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? आपके अधिकार हैं। तो एक हाथ में मशाल है, एक हाथ में अधिकार है, मतलब इस मशाल को लेते हुए अपने अधिकारों का फाइट करते हुए आगे बढ़ते जाना है। डिड यू गेट इट? यस, एक्चुअली दैट्स द जिस्ट, दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ दिस स्टैचू। नाउ ये तो आपको ये समझ में आ गया। एंड ऑन दी अर्थ अभी क्या है कि ऑन दिस अर्थ, अभी इस धरती पे, इन द फोर, पहले क्या था, द इमेज ऑफ लाई द शैटर्ड रिमेन्स। पहले के जो रूलर्स थे, देयर वेर द रूलर्स हु वेर टोटली एंड कंप्लीटली एब्सोल्यूटिस्ट। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सी, ये यहाँ पे देखो कितने का राजा पड़ा हुआ है, ये देखो ना। Yes, the one that signifies आपका राजशाही ठाट बाट आपको मुकुट से पता चलता है। You get a clear-cut idea of the power of a ruler through this through these kind of symbols. ये सारे कूड़े में पड़े हैं। Means the people have overthrown the absolutist ruler. Children, here what you need to understand is the meaning of absolutist. Absolutist का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, and you have to remember this absolutist meaning as it's a very frequently asked question in the board. Absolutist, a government, a system of rule जिसमें कि that has no restraints. कहीं भी कोई भी टकराव नहीं है ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। जो भी इंसान को पावर मिला हुआ है, वॉट एवर पावर अ पर्सन हैज गॉट, द टर्म रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ मोनार्किकल गवर्नमेंट। एक ऐसे गवर्नमेंट की बात हो रही है विच इज एब्सोल्यूट मोनार्की दैट वॉज सेंट्रलाइज्ड। बिल्कुल एक ही इंसान के हाथ में सारे पावर्स हैं, सेंट्रलाइज्ड, सेंटर में सारा पावर है। ऑल द अदर पीपल आर कैन नॉट टॉक अबाउट देयर राइट्स, दे हैव टू जस्ट परफॉर्म देयर ड्यूटीज। सिर्फ आज्ञा का पालन करना है, अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करना है। दिस इज वेयर द थिंग्स स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग। यहां से चीजें जो हैं थोड़ी सी गलत हो गई। द रूलर्स, एब्सोल्यूट institutions. Seurat ने क्या कहा? Seurat said that we have a utopian vision of the society. अब what is utopian? पहला एब्सोल्यूटिस्ट समझिए, एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूट पावर, पूरा पावर एक ही इंसान के हाथ में, एब्सोल्यूटिस्ट। और स्यूरो ने एक यूटोपियन विजन दिया। यूटोपिया है, व्हाट इज यूटोपिया? यूटोपिया इज दैट इज सो आइडियल कि इट इज लाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। हम बातें कर सकते हैं कि वाओ सोसाइटी इज देयर, एवरीबडी इज हैप्पी, किसी को कोई भी कष्ट नहीं है, सब लोग सुखी हैं। इन रियलिटी इट डजंट हैपन। सच्चाई में ऐसा बड़ा मुश्किल है, लेकिन यूटोपियन सोसाइटी में ये एक्चुअली होता है। कहने को है। एंड देखो उस समय ये यूटोपिया था जिस समय Seurat 1848 when Seurat has made this painting, at that time it was utopian. आज utopian नहीं है। Do we have the centralized power? बहुत इक्वालिटी है, बहुत फ्रेटर्निटी है, बहुत ज़्यादा प्रेम है लोगों के बीच में। आज ये सपना नहीं है, आज ये हकीकत है। दिस इज़ द रियलिटी। इसी चीज़ को हमको समझना है, यही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। गॉट इट? तो कैसे पता चल रहा है? पीपल ऑफ द वर्ल्ड
चुके हैं। हाँ, कैसे? बिकॉज वी कैन सी थ्रू देयर फ्लैग, सब लोग अपने अपने कंट्री झंडा लेके आगे आ रहे हैं। इट इज वेरी एविडेंट थ्रू द फ्लैग। People are coming forward with the flag and national costume. अब आप ये देखें यहाँ पे, look at the costumes also. All the people are in their national dress. सब लोग अपने अपने अलग अलग अपनी कंट्री के कॉस्ट्यूम। Costume of the country is the identity of the country. It is the culture of the country. कॉस्ट्यूम से भी पता चल जाता है। साड़ी पहन के अगर मैं कहीं चली जाऊंगी तो पीपल, बहुत सारे लोगों को साड़ी के बारे में नहीं पता हो। They'll ask. That's a kind of costume that is worn in India. I am an Indian. मेरी साड़ी बता देगी लोगों को कि I am an Indian. Got it? I was just citing an example. So my dear students, leading the procession, इस पूरे procession को lead करते हुए, there is past Statue of Liberty को pass करते हुए United States and Switzerland। अब बाय दिस टाइम क्या हो गया था? दे वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। ये पहले से ही नेशन स्टेट्स बन चुके थे। फ्रांस क्या था? फ्रांस को लोग पहचान रहे थे। फ्रांस वाज आइडेंटिफिएबल। फ्रांस को अच्छे से पीपल वे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। फ्रांस वाज आइडेंटिफिएबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर। सबसे पहले हम जब भी रेवोल्यूशन की बात करते हैं चिल्ड्रन, वी हैव टू टॉक अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन एवर दैट हैड हैपेंड। इट हैज जस्ट रीच्ड, मतलब सबसे पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी इस रेस में जो सबसे पहले यहाँ पहुंच चुके हैं, दे हैव क्रॉस द लाइन, इज द फ्रांस। ये फ्रांस है चिल्ड्रन एंड दिस इज जर्मनी। फ्लैग से पता चलता है। गॉट इट? तो फ्रांस हैज रीच्ड लिबर्टी। फ्रांस को मुक्ति मिल गई थी राजाओं के एब्सोल्यूटिस्ट रूल से, एंड इट इज आफ्टर दैट कम्स जर्मनी। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड है। यही टाइम था व्हेन स्यूरो क्रिएटेड दिस इमेज। स्यूरो ने ये इमेज बनाया। जर्मन पीपल अभी भी दे वेर नॉट एग्जिस्टिंग एज अ नेशन स्टेट। यूनाइटेड नेशन अभी भी, जर्मनी वॉज नॉट अ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन मतलब एक नहीं हो गए थे। जर्मनी वॉज देयर, लेकिन छोटी छोटी डिफरेंट प्रोविंसेस वेर देयर। छोटे छोटे ग्रुप्स को मिला के जर्मनी वॉज मेड। यहां से दो फ्लैग वो कैरी कर रहे थे। द फ्लैग दैट दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स। इनके मन में एक कहीं ना कहीं एक जागृति है, एक उम्मीद है 1848 में कि दे विल यूनिफाई द जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज। जितनी भी जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज हैं, जर्मन स्पीकिंग एरियाज हैं, दे ऑल विल बी यूनाइटेड इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पूरी कंट्री में एक ही रूल फॉलो होगा, एंड द पीपल वुड लीड अ वेरी पीसफुल लाइफ। इसी उम्मीद के साथ लोग आगे बढ़ रहे थे। पीपल वे आर प्रोसीडिंग फर्दर विद दिस होप। गॉट इट? एंड जर्मनी के बाद, आफ्टर फॉलोइंग द जर्मन पीपल, इसके बाद कम्स ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया। तो अब आप ये देख लीजिए कि स्टार्टिंग पॉइंट हैज बीन क्रॉस्ड बाय फ्रांस, मीन्स पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स लिबर्टी, एंड उनके पीछे पीछे बहुत सारी कंट्रीज हैं विच आर फॉलोइंग। द नेम ऑफ द कंट्रीज आर गिवन हियर। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रॉम द हेवन, ऊपर से भगवान भी बहुत खुश हैं। इवन द हेवन आर हैप्पी, क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स, दे गेज अपॉन द सीन। वो सारे लोग इस खूबसूरत नजारे को देख रहे हैं। दे गेज अपॉन द सीन, जस्ट सी हाउ वेल इट इज मेंशन्ड। उन चीजों को देख के इवन भगवान भी खुश है। दैट्स द काइंड ऑफ मूवमेंट, दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट हैड हैपेंड। एंड ये सारा आर्टिस्ट ने यूज किया है। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी, भाईचारा बताने के लिए,
पूरे कंट्रीज, पूरे नेशंस ऑफ द वर्ल्ड को फ्रेटर्निटी के तरफ ले जाने के लिए दिस इज अ मेजर स्टेप। अब इस चैप्टर में क्या मिलेगा? बहुत सारी चीज़ें। दिस चैप्टर विल डील विथ इश्यूज, काफ़ी सारी चीज़ें हैं विच इज़ विजुअलाइज्ड बाय स्यूरो। फिगर 1 में हम स्यूरो को देख रहे हैं। 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म इज इमर्जिंग एज अ फोर्स। नेशनलिज्म जो है एक ताकत बन के उभर रहा था, जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। स्वीपिंग चेंजेस वेयर देयर इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। पूरी दुनिया में पॉलिटिकली एंड मेंटली अ चेंज वॉज हैपनिंग। ये सारे चेंज, यू नो, ऑल दीज चेंजेस दैट वर हैपनिंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक ये जो सारे चेंजेस हो रहे थे, ऑल दीज चेंजेस was bringing taking Europe towards a different direction. Mentality of the people is changing, mental world is changing, and end result क्या था? Nation states were coming up in the place of multinational dynastic empires. पहले क्या था? राजाओं का राज था, multinational dynasties were there, one king was there, फिर उनके बेटे होते थे, फिर भले ही वेदर दे आर क्वालिफाइड और नॉट। अब आपको समझना है, अब नाउ व्हाट वाज कमिंग अप वाज नेशन स्टेट। पहले क्या था कि मल्टी नेशनल डायनास्टीज वेर देयर। डायनास्टीज, वही बात है, किंग्स रूल इज देयर, उनके बाद उनका बेटा, इस तरह से द थिंग्स वेर टोटली इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। अब क्या है कि देयर वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट। नेशन स्टेट was coming up and there was a practice of modern state, जिसमें कि centralized power is there, centralized power exercise sovereign control। sovereign control means सारे लोगों का ही कंट्रोल एक जगह पे है ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। इंडिया है तो इंडियंस को पता है यहाँ से यहाँ तक इंडिया है, आई मीन द बाउंड्रीज आर वेरी क्लियरली मेंशन्ड। ठीक है, इट हैड बीन डेवलपिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, का क्या चला आ रहा है। एंड नेशन स्टेट क्या है? जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन, सारे के सारे लोग हैं, नॉट ओनली इट्स रूलर्स, खाली रूलर्स की बात नहीं हो रही है, दे आर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। हम एक देश को बिलोंग करते हैं, आवर कंट्रीज इंडिया, एंड आवर नेशनैलिटी, आवर लैंग्वेज, आवर कल्चर, there is a kind of share, we all belong to the same country, हम उसी देश को belong करते हैं which is 5000 years old. I very proudly say I am an Indian and I have a common history that I share with the citizen, where I claim to be a citizen of this country from last 5000 years. मैं नहीं थी 5000 years से, बट माई एंसेस्टर्स वेर देयर। कोई तो रहा होगा, दादा परदादा के दादा के दादा के दादा, समबडी। तो ये जो कॉमननेस है, ये इट इज नॉट फ्रॉम टाइम इमोरियल, बहुत एक ही समय से, मतलब 5000 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, काफ़ी सालों से रह रहे हैं। एक तरीके से ये नहीं हुआ है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत लोगों को बहुत जान देनी पड़ी है। Many people have laid down their lives. Who were these people who have laid down their lives? We need to understand that. इसी चीज़ को समझना है, इसी चीज़ को इनकॉर्पोरेट करना है। Got it, children? ये जब हम समझ लेंगे तो इस चैप्टर में we will understand, यही चीज़ हमको समझनी है, the different processes, कि when we have become one, जब हम एक हुए, अपना एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हुआ, लेकिन व्हाट वेयर दीज स्ट्रगल्स, हु वेयर दीज पीपल हु वेयर इन्वॉल्व इनटू दीज स्ट्रगल्स। इन सारे स्ट्रगल्स में हमारे साथ कौन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, हु आर दीज पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड विद अस। तो ये ही प्रोसेस को हमको समझना है, जिसमें कि वेरियस नेशन स्टेट्स आर देयर,
nationalism has come into being in the 19th century Europe. 19th century Europe में nationalism is created, and from here the changes have started happening. Okay, अब ये changes कैसे हुए, इसमें कौन लोग involved थे, this is what we will be studying in this chapter.